Hello everyone, welcome back. Today we are going to do most important exam shooters for the atmosphere. Very important topic. Almost all exams में इससे related questions होते हैं. So without wasting any time, let's start. Number one, a thick gaseous envelope surrounding a planet is known as. तो a gaseous envelope जो कि एक planet को surround करता है made up of gases is known as atmosphere. It surrounds a planet from all its sides. Next, which is the most abundant gas in the Earth's atmosphere? तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो मोस्ट अबंडेंट जो सबसे ज्यादा गैस मिलती है दैट इज नाइट्रोजन. इट कॉन्स्टिट्यूट 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ. नाउ इट अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म. सभी ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है. इन ह्यूमंस प्रोटीन्स की फॉर्म में डीएनए और आरएनए भी नाइट्रोजन से ही, नाइट्रोजन उसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है. नेक्स्ट, द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज दैट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो है 21% ऑफ एटमॉस्फेयर कंप्राइज करती है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन. दैट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी. ऑल्सो इट हेल्प्स इन कंबशन. नेक्स्ट, 90% of water vapor in the atmosphere is found within an altitude of. So water vapor एक important greenhouse gas है. It is important for the formation of clouds, rainfalls. जो most of the water vapor है that is confined to 5 kilometers above the sea level. तो within troposphere में ये confine रहता है near the earth surface. Next, the particles of dust, salt, smoke, soot present in the atmosphere are collectively known as. So इनको हम particulate matters कहते हैं. These are nothing but the particles suspended in the atmosphere. They scatter the solar radiation coming from the sun, plus they also form a condensation nuclei and help in cloud formation. Next, which gas in the atmosphere regulates combustion and prevents quick burning? तो नाइट्रोजन गैस दैट इज अ नॉन रिएक्टिव गैस. नॉन रिएक्टिव होती है, ये कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है अनलाइक ऑक्सीजन. ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन और नाइट्रोजन जो है वो कंबशन को प्रिवेंट करती है क्योंकि ये अनरिएक्टिव है एटमॉस्फेयर में. Which is the most combustible atmospheric gas? So oxygen is the most combustible atmospheric gas. ये combustion में help करता है. किसी भी रीजन में जितना ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होगा उतनी जल्दी वहां पर फायर कैच होगा. So it is the most combustible. Next, which is the heaviest atmospheric gas confined to the lower layers? तो among all the gases कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे लोअर लेयर्स में जो प्रेजेंट है दैट इज heavier. Lower layers में carbon dioxide is the heaviest among all the gases. Next, the atmosphere is bound to the earth's surface by which force? तो कोई भी चीज surface of earth पर सिर्फ एक ही force से bound है that is gravity of earth. Atmosphere has weight, so it is also bound by the gravity. Next, the lowermost layer of atmosphere is known as. So lowermost layer को हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं. इट एक्सटेंड्स जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ टू ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर्स अबव द सी लेवल. ये कन्वेक्टिव लेयर है जहां पर कन्वेक्शन डोमिनेट करती है और मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक एंड वेदर फिनोमेना इसी लेयर में होते हैं. नेक्स्ट, एट विच लैटिट्यूड द थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज मैक्सिमम? सो गाइस, द थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज वेरिंग. इट इज नॉट फिक्स्ड. It changes seasonally also and changes latitudinally also. From on the equator it is maximum. If we move from equator to the poles it decreases. So at the poles it is minimum. Because ये convective layer है तो equator पे convection ज्यादा होती है direct sunlight की वजह से. That is why यहाँ पर इसका altitude जो है maximum है या उसकी thickness जो है maximum है. Next, the rate of decrease of temperature with altitude in the troposphere is known as. So troposphere convective layer है. As we move up टेम्परेचर डिक्लाइन. जितना हम ट्रोपोस्फेयर में अपवर्ड्स मूव करते हैं और जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर डिक्लाइन करता है. इस डिक्लाइन इन टेम्परेचर को हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं. या डिक्रीज इन टेम्परेचर इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एनवायरमेंटल लैप्स रेट इन द ट्रोपोस्फेयर इज. सो नॉर्मल लैप्स रेट या एनवायरमेंटल लैप्स रेट एक ही चीज होती है और इसकी वैल्यू होती है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. सो एज वी मूव अप the temperature will drop by 6.5 degree Celsius per 1 kilometer. For example, surface पे अगर temperature 20 degree Celsius है and if we are moving 1 kilometer above the surface of earth तो temperature कितना हो जाएगा? 13.5 degree Celsius. Okay, so next, the average altitude of troposphere over the poles is. I have already told you troposphere जो है
कन्वेक्टिव लेयर है, जहां पर हीट ज्यादा होगी, जहां पर हीटिंग ज्यादा होगी वहां पर कन्वेक्शन ज्यादा होती है। एट द पोल्स देयर इज वेरी मिनिमम सनलाइट, बहुत ही कम टेम्परेचर होता है, सो कन्वेक्शन इज ऑल्सो वेरी लेस। इसीलिए ट्रोपोस्फेयर का जो एवरेज ऑल्टीट्यूड है पोल्स पर वो डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीजेस टू 8 किलोमीटर ओनली अबव द सी लेवल। नेक्स्ट, द ट्रांजिशनल लेयर बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर इज नोन एज, सो ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर दीज आर मेजर लेयर्स। इन दोनों लेयर्स के बीच में एक माइनर लेयर है दैट इज नोन एज ट्रोपोपॉज। इसका जो हाइट है या ऑल्टीट्यूड है सिर्फ 1.5, थिकनेस कह सकते हैं, थिकनेस इज 1.5 किलोमीटर। यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज ट्रोपोस्फेयर में हो रही थी वो स्टॉप हो जाती हैं। सो पॉज मीन्स स्टॉप। तो ट्रोपोपॉज इज अ ट्रांजिशनल लेयर, जो भी ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है दैट विल नॉट अकर इन द स्ट्रेटोस्फेयर, और उसी के बीच में ट्रोपोपॉज एक ट्रांजिशनल लेयर है जहां से ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर में ट्रांजिशन हो रहा है। नेक्स्ट, ऑल द वेदर फिनोमिना इन द एटमॉस्फेयर अकर्स इन ट्रोपोस्फेयर दैट इज क्लोजेस्ट टू द सरफेस। जो भी वेदर फिनोमिना, एटमॉस्फेरिक फिनोमिना, रेनफॉल, क्लाउड्स, कुछ भी होगा, दैट स्मॉग, जो भी वेदर फिनोमिना होंगे वो ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच सीजन द ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज मैक्सिमम। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ट्रोपोस्फेयर का जो ऑल्टीट्यूड है इट चेंजेस सीजनली ऑल्सो। नाउ यू टेल मी इन विच सीजन द कन्वेक्शन विल बी मैक्सिमम, समर और विंटर। समर में कन्वेक्शन विल बी हायर, सो उसका ऑल्टीट्यूड भी समर्स में हाई ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द विंटर्स। 18th, which layer of atmosphere is most suitable for flying aircrafts? Now we have seen that troposphere is a convective layer, लेकिन ट्रांजिशनल लेयर ट्रोपोपॉज के ऊपर अगर जाते हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होता है, और स्ट्रेटोस्फेयर इज नॉन कन्वेक्टिव इन नेचर। नॉन कन्वेक्टिव है इसीलिए इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स। अगर कन्वेक्शन नहीं होगी तो एयरक्राफ्ट विल फ्लाई मोस्ट इजीली। नेक्स्ट, द एवरेज ऑल्टीट्यूड ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज, सो स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम 20 किलोमीटर्स टू 50 किलोमीटर्स। तो अगर हम एवरेज ऑल्टीट्यूड की बात करेंगे दैट विल बी फ्रॉम द मेजर फ्रॉम द सी लेवल। सो सी लेवल से देखेंगे तो एवरेज ऑल्टीट्यूड ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज 50 किलोमीटर्स। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ क्लाउड्स आर जनरली फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। वी नो दैट स्ट्रेटोस्फेयर में कोई भी एटमॉस्फेरिक और वेदर फिनोमिना नहीं होते हैं, बट फिर भी लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में कभी कभी बहुत ही फीबल या बहुत ही लाइट क्लाउड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम सिरस क्लाउड्स कहते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द ओनली लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट, which layer in the atmosphere protects the biosphere from harmful UV radiation? It is the ozone layer. Ozone layer जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही प्रेजेंट होती है। It extends from 20 to 30 किलोमीटर्स। ओजोन जो है एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का O3, जो कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, द ओजोन लेयर एक्सटेंड्स बिटवीन द हाइट ऑफ what kilometers in the atmosphere? Ozone layer extends between 20 to 30 kilometers. Next, the uppermost limit of stratosphere is known as, again uppermost limit of stratosphere एक transitional layer है जो कि जिसे स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज करता है ऑल्टीट्यूड के साथ, स्ट्रेटोपॉज पे जाके वो टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाता है, और उसके बाद मीजोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है जहां पे टेम्परेचर अगेन starts declining. So ये एक ट्रांजिशनल लेयर है स्ट्रेटोपॉज बिटवीन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड द मीजोस्फेयर। नेक्स्ट, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज, सो अगर हम नॉर्मल वैल्यू कहते हैं ओजोन की, इट इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट, और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है दैट इज 300 डॉप्सन यूनिट्स। दिस इज द नॉर्मल वैल्यू। अगर स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की जो वैल्यू है दैट डिक्लाइंस टू बिलो 100 डॉप्सन यूनिट्स, then we say that there is a ozone hole. So concentration अगर कम हो जाती है तो उसी को हम ओजोन होल कहते हैं। Next, there is no mixing of air in which layer of the atmosphere? So stratosphere has no mixing of air, कोई भी convection नहीं होती है यहाँ पे, so there is no mixing. Next, the mesosphere extends at an altitude between, mesosphere extend करता है above 50 kilometers to the 80 kilometers limit, और जो मीजोस्फेयर है अगेन आई हैव टोल्ड यू दैट इन द स्ट्रेटोस्फेयर द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग विद ऑल्टीट्यूड, लेकिन स्ट्रेटोपॉज के बाद मीजोस्फेयर स्टार्ट होता है जिसमें अगेन टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग विद द ऑल्टीट्यूड। तो इसी तरीके से ट्रांजिशन होता है। इट इज द
Mesosphere is the third layer from the sea level, third layer of the atmosphere. Next, the temperature dash with increase in height in the mesosphere. So I have already told you, temperature decreases with increase in height in the mesosphere. You can remember like this, troposphere में temperature was declining with the altitude, then transition layer आई, tropopause, stratosphere start होता है, stratosphere में temperature starts increasing with the altitude, then transitional layer आई, stratopause, stratopause के बाद mesosphere start होता है जहां पे temperature again declines with increasing altitude. The transitional layer between stratosphere and mesosphere is, so transitional layer जो stratosphere और mesosphere को separate करती है, that is known as stratopause, the uppermost limit of stratosphere. Next, the topmost limit of mesosphere is known as, again जो topmost limit है mesosphere की जहां पे एक transitional layer start होगी, that is known as mesopause. So mesopause जो है that is a transitional layer. Next, the minimum temperature in the atmosphere is recorded at. So guys, we know that as we move up in the mesosphere, temperature is declining. So जो minimum temperature होगा वो mesopause पे occur होता है, that is -80 degree Celsius. So minimum temperature in the whole atmosphere is recorded at the mesopause, that is the value is -80 degree Celsius. अगर इसके ऊपर जाते हैं तो थर्मोस्फेयर आता है, अगेन थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, तो इंक्रीज करता है तो मिनिमम टेम्परेचर वहां पे नहीं हो पाएगा, दैट इज व्हाई मिनिमम टेम्परेचर है वो मेसोपॉज पे ही होता है इन द होल एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द मीटियोर्स स्ट्राइकिंग अर्थ बर्न इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. नाउ सी, जो मेसोस्फेयर्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, सो दे फेस दी थर्मोस्फेयर. थर्मोस्फेयर में एक्सोस्फेयर से एंटर करते हैं जहां पे डेंसिटी ऑफ एयर है बहुत ही कम होती है, द एयर इज वेरी रेयर, बहुत ही कम डेंसिटी, सो बहुत ही कम फ्रिक्शन जनरेट होती है, बहुत ही कम हीट जनरेट होती है, दैट इज व्हाई मीटियोर्स कैन नॉट बर्न इन दोज लेयर्स. लेकिन जैसे ही वो मेसोस्फेयर में एंटर करते हैं, देयर इज सफिशिएंट डेंसिटी ऑफ एयर, सफिशिएंट फ्रिक्शन एंड हीट टू बर्न द मीटियोर्स, सो दैट इज व्हाई मीटियोर्स बर्न इन द मेसोस्फेयर. Next, the maximum temperature in the atmosphere is found in which layer? So maximum temperature will be at thermosphere, in the thermosphere. Thermosphere में जो maximum temperature होता है that is 1700 degree Celsius. It cannot be recorded by a usual thermometer. इसके लिए special thermometers use किए जाते हैं because air is very rare. बहुत ही rare है, बहुत ही कम density की air है, इसीलिए normal thermometer जो है उसको उस temperature को record नहीं कर पाता है. Next, the layer that is used for radio communication is, so radio communication के लिए we use ionosphere. Ionosphere is full of ions that are charged particles, और इसी से हम रेडियो और सैटेलाइट कम्युनिकेशंस अर्थ पर करते हैं. नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ ionosphere in the atmosphere is, so now it is asking length. लेंथ कैसे निकालेंगे? The ionosphere extends from 80 kilometers to 640 kilometers above the सी लेवल. 80 से 640 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 560 किलोमीटर्स. नेक्स्ट, विच लेयर इन द आयोनोस्फेयर रिफ्लेक्ट बैक द लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स. नाउ गाइस, आयोनोस्फेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर एंड जी लेयर. जो डी लेयर है दैट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग बिटवीन 60 to 99 किलोमीटर्स. इट रिफ्लेक्ट्स बैक द लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स. Next, which ionic layer is produced by interaction of UV photons and nitrogen molecules? So D layer के just above जो layer होती है that is E layer, जो कि 99 से 130 किलोमीटर तक extend करती है, that is formed by interaction of UV photons and nitrogen molecules. इसी को हम generally Hillside layer भी कहते हैं. So it is an ionosphere का ही सब layer है और ionosphere का ही part है. Next, the homosphere consists of which layers of the atmosphere? So if we divide the atmosphere according to the chemical composition, अगर chemical composition के according देखें, so there are two layers, homosphere and heterosphere. So homosphere extends to 90 kilometers above the sea level, 0 से 90 kilometers है. So there are three layers that consist the homosphere, those are troposphere, stratosphere and mesosphere. 38, the topmost layer in the heterosphere is made up of which element? Now heterosphere जो layer है that extends above 90 kilometers, यहाँ पर जो भी gases या molecules हैं they are arranged according to their weight.
इसीलिए जो डेंसेस्ट मॉलिक्यूल होगा दैट विल बी एट द बॉटम और लाइटेस्ट जो है टॉप पर होगा. सो वी नो दैट हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट. तो हाइड्रोजन कहां पर होगा? सबसे ऊपर होगा, बिकॉज इट इज द लाइटेस्ट. सो दैट इज वाई एटॉमिक हाइड्रोजन इज एट द टॉप. नेक्स्ट, which layer of atmosphere gradually merges with the outer space? So uppermost layer of atmosphere is known as exosphere. ये 650 किलोमीटर से बियॉन्ड एक्सटेंड करती है एंड इट ग्रेजुअली मर्जेस इनटू द आउटर स्पेस. नेक्स्ट, द रेडिएंट एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ इज कॉल्ड. सो जो भी एनर्जी सन के फोटोस्फेयर से एमिट होके अर्थ की तरफ आती है दैट इज इन द शॉर्ट वेव. शॉर्ट वेवलेंथ होती है और उसे सोलर इंसुलेशन या सोलर रेडिएशन कहते हैं. और ये जो एनर्जी अर्थ के एटमॉस्फेयर के टॉप पर रिसीव होती है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट. सो जो सन है दैट इज ऑलवेज एमिटिंग कांस्टेंट एनर्जी टुवर्ड्स द अर्थ. इसी को हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज, सो सोलर कांस्टेंट जो कि कांस्टेंट एनर्जी अर्थ के सरफेस पर रिसीव हो रही है सन से, उसकी वैल्यू होती है 2 लैंगलेज पर मिनट. और 1 लैंगले होता है इज इक्वल टू 1 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सो अगर हम कैलोरीज में देखें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सोलर कांस्टेंट की 2 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. नेक्स्ट, व्हाट परसेंट ऑफ इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर? तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव. तो एटमॉस्फेयर जो डायरेक्ट शॉर्ट वेव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है दैट इज ओनली 14%. सिर्फ 14% ही शॉर्ट वेव एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, वेयर एज 34% एनर्जी इन द एटमॉस्फेयर इज एब्जॉर्ब बाय लॉन्ग वेव थर्मल रेडिएशन जो कि अर्थ के सरफेस से एमिट होती है. नेक्स्ट, द पोर्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज नोन एज. तो जो भी रेडिएशन एनर्जी अर्थ के सरफेस पर आई और विदाउट एनी एब्जॉर्प्शन विदाउट एनी प्रोसेसिंग वो सीधा ही वापस स्पेस में चली गई, उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं एंड दैट इज नोन एज एल्बिडो, रिफ्लेक्टिविटी या एल्बिडो. नेक्स्ट, द एवरेज एल्बिडो ऑफ अर्थ इज, एवरेज एल्बिडो या एवरेज रिफ्लेक्टिविटी वो है अर्थ की 35% जो कि क्लाउड्स, ग्राउंड सरफेस या रेडिएशन विंडो से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है डायरेक्टली. नेक्स्ट, द लाइंस जॉइनिंग इक्वल टेम्परेचर इज कॉल्ड. तो लाइंस जॉइनिंग इक्वल टेम्परेचर आर नोन एज आइसोथर्म्स. नेक्स्ट, which process of energy transfer in the atmosphere requires no medium? तो energy transfer in the atmosphere can be through conduction, convection and radiation. Radiation को कोई भी मीडियम, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती. It is a process that requires no medium at all. It can occur in vacuum also. Next, the outgoing long wave thermal terrestrial radiation is in the form of which radiation type? तो आउटगोइंग लॉन्ग वेव थर्मल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है जो कि अर्थ के सरफेस से एमिट होती है दैट इज इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम या इंफ्रारेड रेडिएशन होती है वो. नेक्स्ट, द मेरिडियनल ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस थ्रू द मूवमेंट ऑफ. तो मेरिडियनल ट्रांसफर ऑफ हीट या लैटिट्यूडनल ट्रांसफर ऑफ हीट, व्हाट हैपेंस दैट द लो लैटिट्यूड्स वी नो हैव सरप्लस हीट और जो हाई लैटिट्यूड्स में वहां पे हीट डेफिसिट होता है. तो टू मेंटेन दिस एनर्जी बैलेंस Earth transfers the energy from the low latitudes to the high latitudes ताकि balance maintain रहे. This occurs through the winds and oceans. Next, the law that wavelength of the radiation is inversely proportional to absolute temperature of emitting body is called. तो इसको Wien's displacement law कहते हैं. Simply it means कि किसी भी radiation emitting body की जो wavelength है वो उसके टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वेवलेंथ जो भी एमिट होगी एमिटिंग बॉडी से वो कम वेवलेंथ होगी और अगर टेम्परेचर कम है तो वेवलेंथ विल बी मोर या हायर वेवलेंथ की एनर्जी रेडिएट होगी. नेक्स्ट, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मूवमेंट ऑफ मास ऑफ एयर इज नोन एज. तो अगर किसी भी कोई भी पार्टिकल्स खुद ही मूव कर जाते हैं हीट को ट्रांसफर करने के लिए दैट इज नोन एज, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन. नेक्स्ट, विच रीजन ऑन अर्थ हैज मैक्सिमम एल्बिडो. तो अर्थ पे या फिर अगर जनरली देखें तो आइस या फ्रेश स्नो या फ्रेश आइस हैज मैक्सिमम एल्बिडो. फ्रेश आइस कहां पे मोस्ट अबंडेंट है अर्थ पर दैट इज इन द पोलर रीजन्स. इट इज इन फैक्ट
seen that Antarctica reflects back 90% of the radiation back, right? 90% रेडिएशन अंटार्कटिका में जो भी रिसीव होती है 90% उसका वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है विदाउट एनी एब्जॉर्प्शन. सो पोलर रीजन हैज मैक्सिमम एल्बिडो ऑन अर्थ. Next, the phenomena of increase in temperature with increase in altitude is known as. So I have already told you and we know कि troposphere में when the altitude increases तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्लाइंस. लेकिन अगर ट्रोपोस्फेयर में इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज करने लग जाए तो उसे हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं. नेचुरली इट अकर्स इन विच लेयर? नेचुरली इट अकर्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर में अगर हम इंक्रीज करते हैं ऑल्टीट्यूड या अप का ऑल्टीट्यूड जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड. नेक्स्ट, temperature inversion is responsible for creating which health hazard in the urban areas? So in the urban areas टेम्परेचर इन्वर्जन से बहुत ही मेजर हेल्थ हैजर्ड होता है जिसे स्मॉग कहते हैं. इट इज फॉर्म्ड ऑफ स्मोक प्लस फॉग. नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड टेम्परेचर एंड द मीन लैटिट्यूडनल टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इज नोन एज, इसको हम टेम्परेचर एनोमली कहते हैं. एनोमली मींस डिपार्चर फ्रॉम द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस. अगर किसी प्लेस का लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर एक पर्टिकुलर वैल्यू है से x, और अगर करंट टेम्परेचर वहां पर y आ रहा है तो x माइनस वाई विल बी टेम्परेचर एनोमली, डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल टेम्परेचर. नेक्स्ट, द लाइंस जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर एट सी लेवल आर कॉल्ड. सो लाइंस जॉइनिंग इक्वल प्रेशर लाइंस को क्या कहते हैं हम? आइसोबार्स. दे आर नोन एज आइसोबार्स. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल इज. सो ऑल ऑफ अस नो दैट एटमॉस्फेयर हैज गैसेस. एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं. गैसेस हैव मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स हैव वेट. सो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर अपॉन अस. अर्थ के सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करता है. दिस प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसकी सरफेस ऑफ द अर्थ पे वैल्यू होती है 1013.2 millibars. The normal value is 1013.2 millibars. As we move up, as the altitude increases, इसकी वैल्यू भी डिक्रीज कर जाती है. At 5 kilometers ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम द सरफेस. नेक्स्ट, द बेल्ट ऑफ काम एक्सटेंड्स बिटवीन विच लैटिट्यूड्स. तो बेल्ट ऑफ काम या जोन ऑफ काम या बेल्ट ऑफ डोल्ड्रम्स एक्सटेंड्स बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ इन द इक्वेटोरियल रीजन. इसको इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट भी कहा जाता है. इट इज फॉर्म्ड बाय थर्मल हीटिंग और यहाँ पे बहुत ही लाइट और फीबल विंड्स होती हैं, इसीलिए कोई कन्वेक्टिव एक्टिविटी नहीं होती या कोई विंड मूवमेंट नहीं, बहुत ही स्लो विंड मूवमेंट होती है, इसीलिए इसे बेल्ट ऑफ काम कहते हैं. नेक्स्ट, द ITCZ इज फॉर्म्ड ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ विच टाइप ऑफ विंड्स. तो ITCZ इज इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. इट लाइज इन द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट तक विंड्स ब्लो होती हैं जिन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं. जब ये कन्वर्ज करती हैं तो एयर राइज करती है और इसीलिए वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ITCZ. सो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कन्वर्ज टू फॉर्म द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, a zone of low pressure. Next, the subtropical high is located between which latitudes? So subtropical high pressure belt is located between 25 to 35 degree latitudes in both the hemisphere. 25 degree north to 35 degree north and 25 degree south to 35 degree south latitudes. It is a zone of high pressure belt है and it is a dynamic belt. Dynamic formation होती है इसकी. It is not thermally made. Next, the subtropical high belts are responsible for the formation of what features on the margins of continents. So subtropical high pressure belt पर क्या होता है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं. द एयर इज सिंकिंग. एयर यहाँ पर राइज नहीं करती है, एयर इज सिंकिंग. सो अगर एयर राइज नहीं करेगी, देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, देयर विल बी नो रेनफॉल, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एरिड डेजर्ट्स. बहुत ही कम मॉइस्चर होगा, बहुत कम रेनफॉल होगी, तो क्या बनेगा, डेजर्ट्स बनेगा. सो वेस्टर्न मार्जिन्स पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स में डेजर्ट्स ही फॉर्म होते हैं. लाइक यू कैन सी द सहारा डेजर्ट ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. Next, which belt is the zone of convergence of westerlies and polar easterlies? So westerlies और polar easterly winds सब polar low pressure belt पे converge करती हैं. सब polar low pressure belt dynamically induced pressure belt है एक, ये dynamic factor से form हुई है, और polar easterlies और westerlies converge करके यहाँ पर mainly temperate cyclones बनाती हैं. Next,
which atmospheric belt is formed by the combined effect of thermal and dynamic factors. So only one belt, subpolar high pressure belt, वो thermal और dynamic दोनों factors के combination से बनती है. Thermal factor is the low temperature और dynamic factor rotation of earth, but mainly यहाँ पर फिर भी thermal factor ही dominate करता है. Next, the maximum deflection of winds occur at which region on Earth's surface? So according to the Coriolis force, minimum temperature कहाँ पर होता है, minimum deflection कहाँ पे होता है winds का? At the equator, and the maximum deflection is at the poles. So maximum deflection होगा poles पर. Next, the winds blowing parallel to isobars are known as. See, generally पहले isobars क्या होते हैं? Isobars are lines joining equal pressure. अगर हम दो isobars को ले लें, one low pressure isobar, one high pressure isobar, so wind will blow from high pressure to the low pressure isobar, perpendicular to the isobar. वो perpendicular होगी wind. But geostrophic winds are those winds that are parallel to the isobars. So geostrophic winds ऐसी winds होती हैं जो isobars के parallel blow करती हैं. Next, the polar fronts are formed due to convergence of which winds? Polar fronts are formed due to convergence of westerlies and polar easterlies, और यहीं पर polar fronts पर ही temperate cyclones form होते हैं. Next, westerly winds at 60 degree south latitude are known as. So westerly winds blow in both the hemispheres, northern as well as southern hemisphere. But southern hemisphere में क्या होता है? There is dominance of sea surface. So अगर sea surface की dominance है, so westerlies are more smoother, more faster, and beyond 40 degree south latitude वहां पे और ज्यादा कम continental land mass है. So westerlies are more furious, more fast, more smooth. So 40 degree south latitude पर इसको roaring 40s कहा जाता है, 50 degree south latitude पर इनको furious 50s कहा जाता है, और 60 degree south पर shrieking 60s कहा जाता है. So they are very fast in the southern hemisphere. Next, temperate cyclones move eastwards under the flow of which winds? So temperate cyclones are formed at polar fronts due to the convergence of polar easterlies and westerlies, और ये मूव करते हैं वेस्टर्ली विंड्स के फ्लो के अंडर. और मूव कैसे करते हैं, किस डायरेक्शन में करते हैं? फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड्स ईस्ट. सो ओरिजिन से ईस्टवर्ड्स ब्लो करते हैं. नेक्स्ट, द थर्मल कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉनसून विंड्स वाज प्रोपाउंडेड बाय. सो थर्मल कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉनसून वाज प्रोपाउंडेड बाय हेली इन 1686. इन्होंने कहा कि मॉनसून इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ लैंड और सी ब्रीज. सो लैंड और सी ब्रीज ही मॉनसून है, जो कि एक लार्ज स्केल पर हो रहा है. बस इतना ही डिफरेंस है कि लैंड एंड सी ब्रीज आर ऑन स्मॉल स्केल और मॉनसून जो है वो लार्ज स्केल पर है. नेक्स्ट, बट ये जो हेली का कंसेप्ट है, इट हैज बीन डिस्कार्डेड. नाउ देयर इज न्यू कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉनसून. जो थर्मल कंसेप्ट है उसको डिस्कार्ड कर दिया गया. सो नेक्स्ट, वार्म एंड ड्राई चिनूक विंड्स ब्लो इन विच कंट्री? सो चिनूक एक वार्म और ड्राई विंड है दैट ब्लोज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये रॉकी माउंटेन्स पर ब्लो करती है. इसको स्नो ईटर भी कहते हैं, बिकॉज जब ये ब्लो करती है, बीइंग वार्म एंड ड्राई, इट मेल्ट्स दी स्नो. सो प्लेन्स में अगर स्नो को मेल्ट कर देती है तो देयर इज मोर एरिया फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. सो इट इज नोन एज स्नो ईटर. नेक्स्ट, वार्म एंड ड्राई लोकल विंड्स ब्लोइंग इन स्विट्जरलैंड आर नोन एज. सो जैसे वार्म एंड ड्राई विंड्स रॉकी माउंटेन्स पे ब्लो कर रही हैं यूएसए में, ऐसी वार्म एंड ड्राई विंड्स स्विट्जरलैंड में भी ब्लो करती हैं. दे आर नोन एज फोहेन. 71st, वार्म एंड ड्राई लोकल विंड्स ब्लोइंग इन द ईस्टर्न सहारा आर कॉल्ड. सो ईस्टर्न सहारा में जो वार्म विंड्स ब्लो कर रही है, दैट इज नोन एज हर्मटन. हर्मटन एक ड्राई और हॉट विंड है, और इसे डॉक्टर्स विंड भी कहते हैं. व्हाई? बिकॉज जहां भी ये ब्लो करती है वहां पे ह्यूमिडिटी को बहुत रिड्यूस कर देती है, प्लस इट ब्रिंग्स स्टॉर्म एंड रेनफॉल ऑल्सो. सो इसे डॉक्टर्स विंड कहा जाता है बिकॉज इट ब्रिंग्स प्लेजेंट वेदर, ह्यूमिडिटी से बहुत रिस्पाइट दिलाती है. नेक्स्ट, विच विंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड रेन ऑन द कोस्ट ऑफ इटली? सो सिरोक्को जो है वो ब्लड रेन फॉर्म करती है इटली के कोस्ट पर. इसे ब्लड रेन इसलिए कहा जाता है, इट ब्रिंग्स मॉइस्चर एंड सैंड फ्रॉम द मेडिटेरेनियन कोस्ट ऑन द अफ्रीकन साइड. सो इटली के बॉर्डर पर उस सैंड को ये डंप कर देती है इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, तो इसीलिए इसको ब्लड रेन भी बोलते हैं. नेक्स्ट, द कोल्ड एंड ड्राई विंड ब्लोइंग इन द रोन वैली ऑफ फ्रांस इज कॉल्ड. सो कोल्ड एंड ड्राई विंड जो रोन वैली ऑफ फ्रांस में ब्लो कर रही है, दैट इज नोन एज मिस्ट्राल. ये इतनी ज्यादा कोल्ड है
कि जो टेम्परेचर है उसको बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ले जाती है, जहां भी ब्लो करती है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है टेम्परेचर। नेक्स्ट, क्लाउड्स दैट फॉर्म रेन एंड थंडरस्टॉर्म्स आर नोन एज, सो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आर नोन एज थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग क्लाउड्स। ये बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड तक एक्सटेंड करते हैं, कभी कभी टिल 11 किलोमीटर्स, और इससे ही थंडरस्टॉर्म और रेन प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट, which type of cloud is also known as fair weather cloud? So fair weather cloud means it brings pleasant weather, बहुत light rain और pleasant हो जाता है weather, that is stratocumulus। stratocumulus जो है ग्रे वाइट कलर में होता है। नेक्स्ट, which clouds are also known as wool pack clouds? So altocumulus clouds को wool pack या sheep pack clouds भी बोलते हैं, क्योंकि ये ग्लोबुलर फॉर्म में sheep और wool की तरह दिखता है। नेक्स्ट, विच क्लाउड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ हैलो अराउंड देम? सो हैलो कौन से क्लाउड्स में बनता है? दे आर फॉर्म फ्रॉम ऑल्टो स्ट्रैटस क्लाउड। और हैलो कैसे बनता है? दैट इज ड्यू टू सन और मून। अगर ये क्लाउड, इस क्लाउड को हम सन या मून के सामने देखेंगे, सो देयर विल बी अ हैलो, एक चमकता हुआ सर्कुलर हैलो बनेगा, एंड दैट इज ऑल्टो स्ट्रैटस क्लाउड। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप ऑन रिवाइजिंग, keep on learning. We'll see you in the next one.